Hello students, in today's lecture we shall have discussion on mass defect on chapter nuclei for class 12. But before to start the discussion on mass defect, we want to discuss what we discussed in lecture 1. In lecture 1 we discussed the meaning of nuclei, the structure of nuclei. Nuclei is nothing but a central part of an atom in which whole mass of an atom or almost entire positive charge is concentrated. Nucleus is having neutron and protons in it, so it is a positively charged region. The number of protons in a nucleus is represented by capital Z, known as atomic number, and any element we can represent by this symbol X is the mass number. Mass number is nothing but the sum of mass of proton and mass of neutron. Number of proton and number of neutron. Mass number is the sum of number of proton and number of neutron, and Z is atomic number. So you see the mass number is nothing but the sum of proton number and neutron number. Proton and neutrons are in the nucleus and known as nucleons. As per latest theory, we can say that proton and neutrons are made up of quark or gluons. There are 6 quarks: up, down, charm, strange, top, bottom, and anti-quarks are also there. And we have discussed that protons are made up of 2 up and 1 down, whereas neutron is made up of 2 down and 1 up. After this, we discussed the mass of proton, 1.00727 AMU, or atomic mass unit, represented by U simply. Similarly, mass of neutron is 1.00866 atomic mass unit, and mass of electron is 0.00055 atomic mass unit. Atomic mass unit, which is represented by AMU or simply by U, is nothing but the 1/12th of the mass of कार्बन 12 एटम. कार्बन 12 एटम के मास का 1/12वां हिस्सा क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है. एंड मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज 1.99 into 10⁻⁻26 किलोग्राम. Therefore, one atomic mass unit is equal to 1/12th of mass of carbon 12 atom. 1/12th of carbon 12 means atom means 1.99 into 10⁻⁻26 kilogram. So one atomic mass unit is approximately 1.66 into 10⁻⁻27 kilogram. Atomic mass can be measured correctly by a mass spectrometer. One atomic mass unit is 931.5 mega electron volt per c square. And then we discuss the size of nucleus. We discuss that the size of nucleus, or we can say the volume, varies linearly with mass number, and the radius of a nuclei is equal to R0 a raised to the power 1/3, where R0 is empirical constant, known as which is equal to 1.2 Fermi or femtometer. After this, we discussed the nuclear density. Density is independent of the mass number. Whatever is the mass number, the density of a nuclei will remain same. So nuclear density does not depend on size of nucleus, and its formula is 3m/4 pi r0 cube. And then we discussed isotope, in which number of proton is same, mass number is different, neutron number is different. Then isobar, जिसमें मास नंबर सेम होता है लेकिन प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होता है. आइसोटोन, जिसमें न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होता है. सिमिलरली वी डिस्कस्ड आइसोमर्स. आइसोमर्स जिसमें मास नंबर भी सेम होता है और प्रोटॉन नंबर भी सेम होता है, बट एग्जिस्ट इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स. A nucleus in ground state and the identical nucleus in metastable excited states are known as isomers. Then I want to tell you some important points about nucleus. The density, always keep it in mind that, बच्चों इनको ध्यान से आपको पढ़ना है और ध्यान रखना है. The density of the nuclei, already हमने इनको डिस्कस कर लिया है, ध्यान रखिएगा. The density of nuclei of all elements is same. हमने देखा था कि density of nuclei does not depend on mass number. So for each and every element, the density of nuclei will be same and is independent of mass number. A. The mass density of atom does not follow this rule.
लेकिन यदि हम मास डेंसिटी ऑफ एटम की बात करें तो मास डेंसिटी ऑफ एटम तो ए पर डिपेंड करता है, लेकिन न्यूक्लियस की डेंसिटी, देखिए ये है एटम और इस एटम के यहाँ पर है न्यूक्लियस। यहाँ तो मैंने न्यूक्लियस की बाउंड्री बता दी है आपको, लेकिन कोई फिक्स बाउंड्री न्यूक्लियस की नहीं होती। आगे मैंने पॉइंट बना करके लिखा है, उसमें देखेंगे। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। सभी एलिमेंट्स का न्यूक्लियस जो डेंसिटी है और न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होता है, लेकिन एटम के केस में जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो सेम, एटम के केस में ये रूल फॉलो नहीं होता। एटम का जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी ऑफ एटम, ये इसको फॉलो नहीं करता और ये किस पर डिपेंड करता है, मास नंबर पर डिपेंड करता है। किसकी डेंसिटी? एटम की डेंसिटी। लेकिन न्यूक्लियस की डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मेटल, न्यूक्लियर मैटर का जो डेंसिटी है, the density of nuclear matter is extremely large compared to the average density of matter। जो मैटर की एवरेज डेंसिटी है उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। जो मैटर की डेंसिटी होती है किसकी? एटम के अंदर जो मैटर की डेंसिटी होती है, जो मैटर एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसके कंपैरिजन में इसके न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस is greater than the density of matter distributed in an atom। density of matter distributed in an atom, density of nucleus, जो मैटर होता है, मैटर की मैं बात कर रहा हूं, मैटर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम, उसकी डेंसिटी से ज्यादा होता है। किसकी डेंसिटी? न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी, यानी इस न्यूक्लियस के जो मैटर की डेंसिटी है वो इस एटम के मैटर की डेंसिटी की तुलना में काफी ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है, द न्यूक्लियस डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। न्यूक्लियस डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट द न्यूक्लियस। पूरे के पूरे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर का डेंसिटी सेम नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता। इट हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर, यानी ये न्यूक्लियस है, यदि ये न्यूक्लियस है, ये तो मैंने आपको यहाँ पर बाउंड्री दिखा दी है न्यूक्लियस की। एज सच कोई बाउंड्री नहीं होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं होता न्यूक्लियस में, आपको बताऊं, इस पॉइंट में मैंने आगे लिखा हुआ है। जैसे कि एटम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, वैसे कोई न्यूक्लियस जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं होता। और न्यूक्लियस की जो सरफेस है वो वेल डिफाइंड बाउंड्री की नहीं होती। न्यूक्लियस की जो वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये तो हमने सुविधा के लिए ऐसा न्यूक्लियस बना लिया है, लेकिन न्यूक्लियस की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि एटम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, वैसे न्यूक्लियस एक सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म नहीं होती। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू होती है डेंसिटी की वो इस न्यूक्लियस के सेंटर पर होती है। न्यूक्लियस के सेंटर पर न्यूक्लियस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं, वैसे वैसे ये डेंसिटी कम होती चले जाती है, डिक्रीजेज टू जीरो एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस की डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है और जीरो की तरफ बढ़ती जाती है। यानी सबसे ज्यादा न्यूक्लियस डेंसिटी कहाँ होती है? सेंटर पर होती है न्यूक्लियस के। और जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे न्यूक्लियस के, डेंसिटी कम होती चले जाएगी, जीरो भी हो सकती है एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। जैसे कि एटम के बारे में मैंने बताया सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, वैसे कि वैसे न्यूक्लियस जो है कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं होता। जो न्यूक्लियस की रेडियस है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रेडियस, इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रेडियस इज टेकन एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो न्यूक्लियस के सेंटर से वो डिस्टेंस है एट विच द डेंसिटी डिक्रीजेज टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट सेंटर। यानी न्यूक्लियस की जो है वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। ये है एटम और ये सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस भी यही होगा, एटम का सेंटर भी यही है, ठीक है। अब इसके इस सेंटर से वो डिस्टेंस जहां पर न्यूक्लियस का डेंसिटी उसके सेंटर की डेंसिटी का हाफ हो जाता है, ये इफेक्टिव डिस्टेंस इस न्यूक्लियस का क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। effective value of nuclear radius is taken as the distance from the center at which the density decreases to half of its value at the center।
सेंटर पर जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है उस डेंसिटी का आधा डेंसिटी जिस डिस्टेंस पर हो जाता है सेंटर से उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस की रेडियस कहते हैं। ठीक है, वो इफेक्टिव वैल्यू होती है न्यूक्लियस रेडियस की। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको यहां से पता चली है, ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे हमें बात करनी है मास एनर्जी की। मास एनर्जी के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, सर अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आपको ध्यान है तो एक रिलेशन दिया था। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात बताई थी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में। किससे? थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दी थी। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी इस थ्योरी में उन्होंने ये बात बताई कि जो एनर्जी है वो m इंटू सी स्क्वायर के बराबर होती है। आइंस्टीन ने ये शो किया कि जो मास है वो अनदर फॉर्म है एनर्जी का। एज पर आइंस्टीन एनर्जी कह सकते हैं एनर्जी इज अनदर फॉर्म ऑफ मास, ऐसे कह सकते हो, अनदर फॉर्म ऑफ मास और मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, मास एनर्जी का दूसरा रूप है और एनर्जी मास का दूसरा रूप है। ये आइंस्टीन ने अपने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जब दिया था थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में, यह बात कही थी। क्या कहा था आइंस्टीन ने कि मास जो है एनर्जी का ही दूसरा रूप है। एनर्जी का ही दूसरा रूप क्या है? मास है। वैसे ही एनर्जी का ही दूसरा रूप क्या है? मास। एनर्जी इज अनदर फॉर्म ऑफ मास। एनर्जी मास का दूसरा रूप है और मास एनर्जी का दूसरा रूप है। यानी एनर्जी और मास जो है एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो अलग अलग रूप हैं। जैसे कि एक कॉइन में उसका हेड और टेल होता है, हेड और टेल जो है कॉइन के, एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। वैसे ही मास और एनर्जी भी एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो अलग अलग फॉर्म हैं। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड फर्दर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। मास और एनर्जी जो है एक दूसरे के ही दो अलग अलग रूप हैं। मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी कैन कन्वर्ट मास एनर्जी, और ये हम मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में, और इस मास एनर्जी को हम बदल सकते हैं किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी में बदल सकते हैं हम इसको, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकते हैं, एटसेट्रा। यानी मास एनर्जी को दूसरे एनर्जी की फॉर्म में बदला जा सकता है। मास और एनर्जी एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो रूप हैं, और सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने फाइनली एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू सी स्क्वायर ये रिलेशन दिया। इस रिलेशन में जो सी है, व्हाट इज सी इज इक्वल टू जो एम सी स्क्वायर रिलेशन दिया, इसमें जो सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर लाइट का स्पीड है, और वैक्यूम के अंदर लाइट का स्पीड आप सब जानते होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी 1905, थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915। उसमें उन्होंने ये बताया कि एनर्जी और मास जो है एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो रूप हैं। मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज अनदर फॉर्म ऑफ मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, और वी कैन से द मास एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू another form of energies like kinetic energy, potential energy, etc. Therefore, energy E is equal to mc square, where c is the speed of light in vacuum, E is energy, m is mass. Okay, m is mass. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं जरा। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का हमें एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का।
देखिए मास है 1 ग्राम, ठीक है, मास है 1 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में पहले मैं बदल लूं तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा ये। भाई 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से नीचे, नीचे वाला 1000 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ और ऊपर वाला 1000 ग्राम के साथ मिलकर के किलोग्राम हो जाएगा। तो किलोग्राम में मास का वैल्यू इतना होता है। तो एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो एच पर E इज इक्वल टू mc²। इस रिलेशन से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 10⁻³ C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका होल स्क्वायर है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ ये और ये 9 और ये हो गया 16। सॉल्व करने पर ये आ गया 9 × 10⁻13 और ये किस में आया, जूल में। तो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का जो एनर्जी इक्विवेलेंट है यानी 1 ग्राम मास, 1 ग्राम मास कितनी एनर्जी के बराबर है, 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी के बराबर है। 1 ग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, देयर इज रिलीज ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी 1 ग्राम मास को यदि एनर्जी में बदलोगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। 1 ग्राम का मतलब इतना एनर्जी होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है एनर्जी का, है या नहीं। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है डेंसिटी के ऊपर, मैं उसके बारे में बताऊं आपको। ये और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो अभी हमने जाना कि कैसे 1 ग्राम जो मास है वो 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी के बराबर है, वेरी बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, और वी कैन से मास एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चाहे वो जनरल थ्योरी है चाहे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टीन ने इसको दिया था, E = mc² रिलेशन दिया, यानी एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो रूप हैं, कौन, मास और एनर्जी, जिनको एक दूसरे में बदला जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर ये क्वेश्चन और देखें, गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85 U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ आयरन, आयरन मतलब Fe, मास ऑफ आयरन इज 55.85 U, और 1 U का मतलब होता है, मैंने आपको बताया 9.27 into 10⁻26 into 10⁻26 किलोग्राम। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू है, 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू है किलोग्राम के अंदर, नहीं ये नहीं होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू 1.66 है, 1.66 है, 1.66 into 10⁻27 ये वैल्यू है, 1.66 into 10⁻27 किलोग्राम ये वैल्यू है। ठीक है, किसका वैल्यू है, 1 U का, एटॉमिक मास यूनिट का। तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी इसमें पूछ रहा है, A = इतना दे रखा, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। अब देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी A पर तो डिपेंड करता नहीं है, न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, तो हमने ये निकाला 3m/4πr03, जहां m की वैल्यू तो आप लिख सकते हैं 55.85 U, और U की जगह क्या लिख देंगे 55.85 into 1.66 into 10⁻27, ये किलोग्राम में मास हो गया, और ये मास तो किलोग्राम में हो गया। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14, और R0 की वैल्यू भी हम जानते हैं 1.2 फर्मी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1.2 into 10⁻15 मीटर। तो यहां से जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 3 into m की वैल्यू रखें 55.85 into 1.66 into 10⁻27, ये तो हो गया ऊपर 3m का वैल्यू, डिवाइडेड बाय 4 into 3.14 into R0 का वैल्यू हो गया 1.2 into 10⁻15 होल क्यूब। जब इस डेंसिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.29 into 10⁻17 into 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू आएगी डेंसिटी की, ये न्यूक्लियर डेंसिटी आएगी। तो इस फॉर्मूले में हम रख करके Rg0 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, न्यूक्लियर डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। अब ये जो डेंसिटी ऑफ मैटर है न्यूट्रॉन स्टार में, एक एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट होता है न्यूट्रॉन स्टार, ये जो डेंसिटी आई ये न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी के बराबर है। किसके बराबर है? न्यूट्रॉन स्टार की जो डेंसिटी है वो भी लगभग कितनी होती है? 2.29 इंटू 10⁻⁷ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये न्यूट्रॉन स्टार की जो डेंसिटी है उसके बराबर है। इसका मतलब यह है कि जो मैटर है किसके अंदर, न्यूट्रॉन स्टार के अंदर, वो इतना कंप्रेस कर दिया गया है कि वो एक बड़े न्यूक्लियस के रूप में दिखाई देते हैं, एक बड़े न्यूक्लियस के रूप में दिखाई देते हैं। क्यों? न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी और ये डेंसिटी बराबर आ रही है, तो इससे ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब एक नया टर्म और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट एक टर्म है, इसको भी हमें डिस्कस करना है। देखिए मास डिफेक्ट may be defined as the difference of sum of masses of nucleons and mass of न्यूक्लियस। मतलब क्या लिखा है? डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? मास डिफेक्ट जो है डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियंस के मास के सम और न्यूक्लियस के मास के सम का जो डिफरेंस है उसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि ये न्यूक्लियस है, ये कौन है? न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस का एज ए होल मास m है, और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है उनका मास mn है, मान लीजिए न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास मान लीजिए mp है, ठीक है, और ये स्मॉल n mn क्या है? न्यूट्रॉन का मास है, और mp क्या है? प्रोटॉन का मास है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के, ठीक है। तो सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियंस क्या हो गए? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। तो जो मास डिफेक्ट होगा जिसको हम डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लिखा जाएगा, जो प्रोटॉन्स का मास होगा उसको प्रोटॉन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो टोटल प्रोटॉन मास आएगा, और प्लस जो न्यूट्रॉन का मास है उसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूट्रॉन नंबर से, तभी न्यूट्रॉन्स का टोटल मास आएगा। और ये जो सम आया ये न्यूक्लियंस के मास का सम हुआ, और इसको माइनस कर दें न्यूक्लियस के मास से, ठीक है, न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दें इस न्यूक्लियंस के मास में से, तो ये कहलाएगा मास डिफेक्ट। क्या कहलाएगा? मास डिफेक्ट। फिर से देखिए, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन है? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन्स का मास है mn और प्रोटॉन्स का मास है mp, और न्यूक्लियस का एज ए होल मास है कैपिटल M। तो जो मास डिफेक्ट होता है वो न्यूक्लियंस के मास के सम, यानी न्यूक्लियंस का मास का सम मतलब प्रोटॉन्स का टोटल मास कितना होगा? mp तो एक प्रोटॉन का है, तो टोटल नंबर ऑफ, यदि z को मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लेता हूं तो z इंटू mp, ये प्रोटॉन्स का मास आ जाएगा, प्लस एक न्यूट्रॉन का जो मास है, एक न्यूट्रॉन का मास mn है, तो n टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? nmn हो जाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं न्यूक्लियस के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनका जो मास का सम होगा वो क्या होगा? zmp प्लस nmn, और इसको इसमें से माइनस कर दें किसको? मास ऑफ न्यूक्लियस को एज ए होल, तो ये कहलाएगा मास डिफेक्ट। जिसे आप देखिए, अब n की वैल्यू क्या होती है? a माइनस z होती है, क्योंकि a बराबर z प्लस n होता है, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू ये लिख सकते हैं, और इस मास डिफेक्ट को फिर लिखा जाएगा zmp प्लस zmp, इस ब्रैकेट को रहने दो, zmp n की जगह क्या लिखेंगे? a माइनस z mn और माइनस m, इस तरीके से भी इस मास डिफेक्ट को लिखा जा सकता है। तो व्हाट इज दिस मास डिफेक्ट?
देखिए न्यूक्लियस जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना है। न्यूक्लियस किससे बनकर मिलकर के बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझिए। न्यूक्लियस किससे मिलकर के बना है बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना है। इसलिए ये उम्मीद की जाती है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, जो मास ऑफ न्यूक्लियस है यानी कैपिटल एम, वो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनके टोटल मास के बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना है। तो न्यूक्लियस का टोटल मास यदि एज ए होल में मास मानूं कैपिटल एम है, तो ये जो एज ए होल मास कैपिटल एम है वो न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनके मास के सम के बराबर होना चाहिए, उनके मास के सम के बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा हमेशा क्या होगा? हमेशा जो न्यूक्लियस का मास होता है, न्यूक्लियस का मास जो होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस एज ए होल, पूरे के पूरे न्यूक्लियस का जो मास है वो हमेशा कम होता है। किससे? मास किससे कम होता है? मास सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स के मास के सम से कम होता है। किसका मास? न्यूक्लियस का मास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल में मैं बात कर रहा हूं जैसे कि ऑक्सीजन की। किसकी बात कर रहा हूं? ऑक्सीजन की। 8O16 है, ठीक है। ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? यदि इसमें देखें तो ए का वैल्यू तो हो गया 16 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? A माइनस जेड यानी 16 माइनस 8 यानी 8 हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन्स तो इसमें हो गए 8 और प्रोटॉन्स हो गए 8 और मास नंबर 16 हो गया, ठीक है। तो जो 8 न्यूट्रॉन्स हैं, मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स क्या होगा? मास ऑफ, यदि मैं 8 न्यूट्रॉन्स के मास की बात करूं, 8 न्यूट्रॉन्स का मास यदि मैं एटॉमिक मास यूनिट में निकालना चाहूं तो 8 न्यूट्रॉन्स का निकालना है और एक न्यूट्रॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट में हम ऑलरेडी जानते हैं 1.00866 यू होता है। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? या ऐसा ही रहने दीजिए इसको। ऐसे ही मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स की मैं बात करूं, 8 प्रोटॉन्स के मास की मैं बात करूं तो 8 इंटू एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.0072 एटॉमिक मास यूनिट। ये 8 प्रोटॉन्स का मास हो गया एटॉमिक मास यूनिट में और ये 8 न्यूट्रॉन्स का मास हुआ एटॉमिक मास यूनिट में। अब इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा? मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। भाई जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एटम के अंदर। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स के मास से हमें कोई लेना देना नहीं है। 0.0055 एटॉमिक मास यूनिट। हमें तो केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से मतलब है क्योंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक मास यूनिट में मास इतना हो जाएगा, 8 प्रोटॉन्स का इतना हो जाएगा और 8 न्यूट्रॉन्स का इतना हो जाएगा। अब जो ऑक्सीजन न्यूक्लियस का जो मास होगा, ऑक्सीजन न्यूक्लियस का जो मास होगा, ऑक्सीजन न्यूक्लियस के यदि मैं मास की बात करूं, ऑक्सीजन न्यूक्लियस का एज ए होल यदि मैं मास देखूं तो जो ऑक्सीजन का एज ए होल मास होगा, ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मास ऑफ, सिंस मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस एज ए होल ये होता है 8 ये जेड है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2.01593, ठीक है। ये टोटल ये एज ए होल तो इसका होता है, एज ए होल होता है 15.99493 यू हो गया। ये एज ए होल ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मास होता है 15.99493। लेकिन यदि कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास देखें, सम ऑफ मासेज ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हो गया जिससे न्यूक्लियस बना हुआ है, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? 8 है। तो 8 प्रोटॉन की यदि मैं बात करूं तो प्रोटॉन का मास कितना था, ये देखिए जरा, ये था हमारे पास प्रोटॉन का मास कितना है, 8 इंटू 1.00727 U प्लस न्यूट्रॉन का 8 इंटू, यहाँ ब्रैकेट ही लगा दो, इंटू रहने दो, 1.00866 U, ये हो गया। अब 8 तो आ गया कॉमन, 8 तो कॉमन ले लो और इन दोनों को ऐड करो, U हो जाएगा 6 और 7 3, 6 2 8 और 9 8 और 7 5 1 0 और ये 2.01593 U, और इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा U 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 2 8 9 72 और 4 7 8 5 40 और 7 47 4 12 और 16.12744 U आया। किसका? ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास आया, ये देखिए। और एज ए होल मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला था ये किससे निकालेंगे बेटा? मास स्पेक्ट्रोमीटर से। जब ऑक्सीजन स्पेक्ट्रोमीटर से जब मास एज ए होल न्यूक्लियस का देखे हैं, ऑक्सीजन न्यूक्लियस का तो इतना है और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इतना है, तो देखिए जरा न्यूक्लियस का मास कम आ रहा है, यही तो हमने लिखा था, मास ऑफ न्यूक्लियस एज ए होल इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कम आ रहा है ना, तो यहां भी तो वही हुआ, कम आ रहा है। तो ये जो कमी आ रही है, तो जो मास डिफेक्ट होगा, मास डिफेक्ट कितना होगा फिर यहाँ पर? मास डिफेक्ट जो होगा वो कितना होगा? मास डिफेक्ट होगा 16.712744 U, ठीक है। इसमें से माइनस कर दें न्यूक्लियस का मास 93 U, ये माइनस कर देता हूं, तो जो मास डिफेक्ट निकल के आया वो 1 U 4 में 5, ठीक है, 4 में से 3 1 और ये 4 है, ये 9 एंड 5, ठीक है, और ये 7 और 2 3 1 0.13251, आई थिंक यही होगा। 314 9 5 14 का 4 हासिल 1 6 7 3 12 11, ठीक है, ये आएगा। ये मास डिफेक्ट आ गया, क्या आ गया? मास डिफेक्ट आ गया 0.13251, 0.13251, ये मास डिफेक्ट आया। अब ये जो मास डिफेक्ट, ये क्या कहलाया? मास डिफेक्ट कहलाया। अब यहां ये सोचना है कि ये मास डिफेक्ट अपीयर क्यों हुआ, ये कहां से आ गया, कहां चला गया मास? फिर भाई न्यूक्लियॉन से मिलकर के न्यूक्लियस बनता है, तो जब न्यूक्लियॉन्स का मास तो ज्यादा है और न्यूक्लियस का मास कम आ रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब न्यूक्लियॉन्स से मिलकर के हमने न्यूक्लियस बनाया तो एनर्जी की जरूरत आई, एनर्जी की क्या पड़ी? जरूरत हुई, एनर्जी की जरूरत हुई। भाई न्यूक्लियॉन्स मिलकर के न्यूक्लियस बना रहे हैं तो कुछ एनर्जी यहाँ पर क्या हुआ होगा? रिलीज हुआ होगा। कुछ एनर्जी यहाँ पर क्या हुआ होगा? रिलीज हुआ होगा, जो कि मास डिफेक्ट की फॉर्म में यहाँ पर अपीयर हो रही है। किसकी फॉर्म में अपीयर हो रही है? मास डिफेक्ट की फॉर्म में अपीयर हो रही है। भाई जब 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिलेंगे तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का मास तो इतना आ रहा है, लेकिन जब मिलकर के न्यूक्लियस बनाया तो न्यूक्लियस का मास इतना आ रहा है। इसका मतलब ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, मास का जो डिफरेंस है, ये न्यूक्लियस के मास और कॉन्स्टिट्यूएंट के मास में एज ए होल जो डिफरेंस आ रहा है, जिसे हम मास डिफेक्ट कह रहे हैं, इसका मतलब मास का कुछ हिस्सा जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया।
एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी वो मास का कुछ हिस्सा जो है न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांधने के लिए खर्च हो गया, जो कि एनर्जी रिलीज की फॉर्म में अपीयर होगा। किसकी फॉर्म में अपीयर होगा? एनर्जी रिलीज की फॉर्म में अपीयर होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? मास डिफेक्ट कहेंगे। और ये जो एनर्जी जो भाई आपने 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन को मिला करके 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन को मिला करके न्यूक्लियस बनाया, तो न्यूक्लियस का मास जो है वो मास ऑफ 8 प्रोटॉन और मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन इनसे कम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मास का कुछ हिस्सा जो है यहां पर एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो गया। और वो एनर्जी कहां खर्च हुई होगी? वो एनर्जी खर्च हुई होगी इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बांधने के लिए, यानी इस न्यूक्लियस को बनाने के लिए। तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बांधे रखने के लिए जितनी एनर्जी की हमें जरूरत होती है उसे वाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए भी तो उतनी एनर्जी की जरूरत होगी जितनी एनर्जी यहां पर इसको बनने में रिलीज हो रही है। बनने के बाद यदि इस न्यूक्लियस को तोड़ना है तो उतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो न्यूक्लियस को बनाए रखने के लिए, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बनाए रखने के लिए, या उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसी के ऊपर। देखिए, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU। 1 AMU का एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होगा वो हमें पता करना है। फर्स्ट इन जूल के अंदर कितना होगा, और उसके बाद में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए, यदि मैं 1 AMU की बात करूं, 1 AMU मतलब 1 U, और 1 U का मतलब होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है 1 AMU का मतलब। ठीक है, अब इसको मुझे पहले जूल में कन्वर्ट करना है, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, और इसको एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU का एनर्जी इक्विवेलेंट एनर्जी निकालनी है तो E = mc² होता है, और m की जगह कितना आ गया 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, ये मास हो गया, ये मास हुआ, और c का मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होल स्क्वायर हुआ। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एनर्जी की जो वैल्यू आई 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आई, जो कि जूल में एनर्जी आ गई। अब जूल को आपको बदलना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए, आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो अब यहां से 1 जूल कितना आ जाएगा? 1 जूल आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी वो कैसे आएगी? 1.49 इंटू 10⁻⁻10 में डिवाइड कर दें हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 0.9315 इंटू 10⁻+9 आएगा, ऊपर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। और यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 931.5। जब मैं इस पॉइंट को यहां ले आता हूं तो ये 6 रह जाएगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है मेगा, और ये आ गई एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाली, जूल में एनर्जी निकाली। एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। अब जो मास डिफेक्ट है ऑक्सीजन का जो मास डिफेक्ट है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में लिखना है। अब देखिए, मास डिफेक्ट पता होना चाहिए, कितना आया था मास डिफेक्ट इलेक्ट्रॉन का। जब यदि हम मास डिफेक्ट बात करें, इलेक्ट्रॉन के मास, ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट जो था, मास डिफेक्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन यहां पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन कितना आया था? ये आया था आपका 0.13251 U। ये मास डिफेक्ट आया था,
अब इस U को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में बदलना है। तो मैं क्या करूंगा कि जो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो जो मास डिफेक्ट है वो 0.13251, इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधे 931.5 से, तो जो वैल्यू आएगी मास डिफेक्ट की 127.5, इसको सॉल्व करने से ये किस में आई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। ये मास डिफेक्ट की वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई, मास डिफेक्ट की वैल्यू आई। ठीक है, ये मास डिफेक्ट की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में आ गई। तो इस तरीके से हम एनर्जी को जूल में और एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मास डिफेक्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो एक तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। और आपको ध्यान रखना है ये वाला भी कि 1 U का मतलब इतना होता है। ठीक है, और एक ये तो आपको पता है ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे लिखते हैं। चलिए, इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ पर जानना जरूरी है, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है? देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन जो है जरूरी है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को समझने के लिए। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए न्यूक्लियस इज इट्स मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, मास डिफेक्ट को यदि मास नंबर से डिवाइड कर दें, मास डिफेक्ट यानी डेल्टा एम, इसको डिवाइड कर देता हूं मास नंबर यानी ए से, तो आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। क्या आ जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा। मास डिफेक्ट डेल्टा एम को यदि मास नंबर ए से डिवाइड कर दें तो उसे हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यदि पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आता है किसी न्यूक्लियाई के लिए, जैसे कि आप आगे देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व में कि 20 मास नंबर से कम वाले न्यूक्लियाई और 200 मास नंबर से ज्यादा वाले न्यूक्लियाई, यानी जिनका मास नंबर ए का वैल्यू, जिनका मास नंबर कहां से कहां हो, लेस देन हो 20 से, लेस देन हो 20 से कम हो, और ग्रेटर देन हो क्या, 200, ग्रेटर देन हो 200 से। ठीक है, जिसका मास नंबर लेस देन हो 20 से और ग्रेटर देन हो 200 से। ठीक है, 200 से ज्यादा वाले और 20 से कम वाले मास नंबर के जो न्यूक्लियाई हैं उनका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव होता है, और जिनका पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है, जिनका पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है वो अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है काफी कम आती है, बाइंडिंग एनर्जी काफी कम होती है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी काफी कम होती है, तो वो अनस्टेबल होते हैं जिनका पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है। और जिनका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होता है, नेगेटिव किसका होता है? जिनका मास नंबर 200 से कम और 20 से ज्यादा हो, यानी 20 से 200 के बीच में जिसका मास नंबर है, ऐसे न्यूक्लियाई का पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा। सो जिनका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होता है वो न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाएंगे जिनका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होता है, यानी 20 मास नंबर से 200 मास नंबर के न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई है, और जबकि 20 से कम यानी लाइटर न्यूक्लियाई कहेंगे उनको, जिनका मास नंबर 20 से कम है वो लाइटर न्यूक्लियाई, और जिनका मास नंबर 200 से ज्यादा है वो हैवी न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो लाइटर और हैवियर दोनों न्यूक्लियाई कैसे होंगे? अनस्टेबल होंगे, जबकि एवरेज मास के जो न्यूक्लियाई होंगे वो स्टेबल होंगे। ठीक है, अब यहां देखिए ये क्या बताता है, ये स्टेबल होने का मतलब क्या है कि सम मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विच बाइंड्स द न्यूक्लियन टुगेदर। जो मास डिफेक्ट मैंने ऊपर बताया था ना बेटा, ये पैकिंग फ्रैक्शन बता क्या रहा है हमें कि कुछ एनर्जी यानी इतनी एनर्जी, मास डिफेक्ट का मतलब है कि मास का कुछ हिस्सा जो है कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, जो कि न्यूक्लियंस को बांधे रखता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में खर्च हो गया। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? पैकिंग फ्रैक्शन पर। पैकिंग फ्रैक्शन यदि नेगेटिव है तो उस केस में न्यूक्लियस जो है ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि उस केस में जो है मास का कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो गया होगा, किसमें? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, और उस एनर्जी का यूज न्यूक्लियंस को बांधे रखने में किया जा रहा होगा। किसको? न्यूक्लियंस को बांधे रखने में किया जा रहा है। तो ये थी बात है, न्यूक्लियस कब स्टेबल होगा,
कब अनस्टेबल होगा, इसमें पैकिंग फ्रैक्शन की जो रोल है, पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है तो न्यूक्लियस स्टेबल, पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था आज के इस लेक्चर में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।